آپ دیکھ رہے ہیں باب قبلہ یوٹیوب چینل۔ میں ہوں سید محمد بخاری۔ آج 25 محرم الحرام میں حضرت سجاد علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ آئیے مجلس اعزاز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ محمد کی بیٹی اس مظلوم کے جنازے پہ آنا قبول فرمائے۔ صرف اور صرف حاضری کی خاطر 4 یا 5 منٹ کے صرف مصیبت کی ایک سطر پڑھوں گا۔ آج یہ سوچ کے رونا، جو ہر مجلس میں پہلو پہ بیٹھا ہوتا ہے آج وہ تابوت میں آ رہا ہے۔ جسے خبر ہے کہ آج 25 محرم ہے، اسے کوئی لفظ کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ میں کیا کہوں کہ سجاد کتنا روتے تھے۔ امت نے جلدی کی سجاد کو زہر دینے میں، ورنہ ذمہ دار احباب تشریف فرمائے ہیں زہر سب سے پہلا اثر جگر میں کرتی ہے، اور جس کا جگر ہی شام کھا گیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب شام سے قید نبھا کے حسین کا یہ غیرت کا پروردگار بیٹا کربلا کے جنگل میں آیا تو لاشوں کے درمیان کھڑے ہو کر سجاد نے کہا اکبر برچھی کھانا آسان ہے، قاسم لاش گھوڑوں کے سموں کے نیچے پامال کروانا آسان ہے، اصغر سوکھے ہوئے حلق پہ تیر کھانا آسان ہے، چچا غازی فرات پہ بازو کٹوانا آسان ہے، بابا حسین 13 ضربے کھانا بھی آسان ہے۔ ہر لاش ہلی، آواز نیزہ آسان، برچھی آسان، تیر آسان، پامالی آسان۔ سجاد مشکل کیا ہے؟ لاشوں کے درمیان گر کے کہتا ہے زینب جیسی ماں 9 گھنٹے شرابی کے دربار میں کھڑ کر۔ یہ صرف سجاد کا حوصلہ۔ کوئی شیعہ نہ سمجھے کہ شاید اسے لڑنا نہیں آتا تھا، غازی سے زیادہ بہادر تھا سجاد، عباس سے زیادہ بہادر تھا سجاد۔ میں نے لفظ کہا اگر آپ کے ذہن میں سوال ہے تو میں جواب دے دیتا ہوں۔ سجاد کی جگہ عباس ہوتے تو پہلے ہی چوک میں مر جاتے۔ یہ تو حوصلہ تھا سجاد کا جو ہر موڑ پہ اسے حجت کی وجہ سے زندہ رکھا گیا۔ ہر موڑ پہ سجاد رو رو کے کہتا رہا ماں گھبرانا، تیرا سجاد تیرے ساتھ۔ اتنا رویا ہے یہ حسین کا بیٹا کہ 40 سال بیت گئے اور آنکھوں کا لہو بند نہ ہوا۔ منہال کوفی نے دو کے کہا مولا آنکھوں کا لہو بند کر۔ رو کے کہتے کیسے بند کروں؟ میں آنکھیں بند کروں مجھے کبھی اکبر نظر آتا ہے، میں کسی کا جوان دیکھوں مجھے قاسم یاد آتا ہے، میں کسی کی گود میں بچہ دیکھوں مجھے اصغر یاد آتا ہے۔ اسے کہا مولا اٹھئے نا، تھوڑی زحمت کیجئے، بازار میں آئیں، لوگ آپ کو ملیں، آپ کے ذہنوں سے کربلا نکلے۔ سجاد تڑپ کے کہتے نہ لے کے جا، میں بازار جاؤں مجھے شام کے بازار یاد آتے۔ میرے حال نے ہاتھ پکڑا، مدینے کے بازار میں حسین کا بیٹا آیا، گلی میں اعلان ہو گیا سارے آؤ حسین کے بیٹے کے قدموں میں گرو۔ کسی نے کہا مولا سلام، کسی نے کہا آقا سلام، کسی نے کہا وارث سلام۔ سجاد نے کسی کے سر پہ ہاتھ رکھا، اللہ تیری جوانی کو خیر کرے، اللہ تجھے ماں باپ کو نصیب کرے۔ دعائیں دیتے دیتے حسین کے بیٹا آگے بڑھا۔ یا سامنے ایک قصاب کی دکان کھلی تھی، اس نے حسین کے بیٹے کو آتے دیکھا، اس نے جلدی سے وضو کیا، حسین کے بیٹے کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، مولا میرا بھی سلام۔ مولا کی آواز ہے کون ہے تو؟ مولا آپ کا شیعہ ہوں۔ مدینے کیا کاروبار ہے تیرا؟ مولا یہ سامنے میری دکان ہے، میں گوشت بیچتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا سجاد وہیں کے وہیں رک گئے، پر رو کے کہتے مجھے بتا تجھے شریعت محمدی میں احکام ذبیحہ یاد ہے؟ جانور کو ذبح کیسے کیا جاتا ہے؟ اس نے سمجھا کہ شاید رسول کا بیٹا شریعت پوچھنے لگا۔ ہاں مولا مجھے یاد ہے۔ فرمایا مجھے سنا۔ اس نے کہا پہلی شرط ہے شریعت محمد میں جانور ذبح کرنے کی، جسے ذبح کرو اسے پہلے پانی پلاؤ۔
पानी पिलाने का नाम आना था, सजाद जमीन पे गिर गए। रो के कहते लोग जानवरों को पानी पिला के ज़िबा करते, मेरे बहते दरिया पे प्यासे मारे गए। सजाद ने कहा मुझे दूसरी शर्त सुना। इसने कहा मौला दूसरी शर्त यह है कि जानवर को जानवर के सामने ज़िबा नहीं करते। सजाद ने अमामा उतार के मदीने के बाजार में फेंका। रोके का लोग जानवर को जानवर के सामने ज़िबा नहीं करते। मेरी 3 फुफियां सर पे कुरान रख के 70 कदम के फासले पे रो रो के कातिल को कहती नहीं ना मार, मेरा 3 दिन का प्यासा है। मौला ने फरमाया जल्दी कर, मुझे तीसरी शर्त सुना। इसने हाथ जोड़ के कहा मौला मैं शर्तें सुनाता हूं, आप रोते हैं। फरमाया रो नहीं रहा, मेरी इबादत हो रही है, जल्दी कर मुझे तीसरी शर्त सुना। डुडियाल गिरदो नवा का मजमा ये तड़पा तड़प के कहने लगा मौला तीसरी और आखिरी शर्त ये है, जानवर को जिस छुरी से ज़िबा करो वो तेज होनी चाहिए, वो तेज होनी चाहिए। सजाद रो के कहते मुझे मेरी हवेली वापस छोड़ाओ। लोग जानवरों को तेज छुरी से ज़िबा करते हैं, मुझे मेरे बाबे के लहू की कसम है, जिस खंजर से मेरे बाबे को ज़िबा किया गया उसकी आवाज मेरी मां खेमे में सुनती, ना मेरी आंखों का खून बंद होगा, ना मैं बाबे की करबला को भूल सकूंगा। एक सतर और मुसीबत की, जितने रो पड़े एक एक आंसू की खैरात और आ जाए। सैयदुल साजिदीन है ये हुसैन का बेटा, ज़ैनुल आबिदीन है ये हुसैन का बेटा। सजदा हुसैन का भी आसान नहीं था, बेटों भतीजों की लाशों के दरमियान किया। सजदा अली का भी आसान नहीं था, जो कूफा की मस्जिद में किया। लेकिन सैयदुल साजिदीन अली ना हुए, सैयदुल साजिदीन हुसैन ना हुए, सैयदुल साजिदीन है हुसैन का बेटा। अब मुझसे वो सजदा सुनो और मैं आपको सलाम करूं। आपको आज सारा दिन जाकर जनाब सज्जाद के दर्द सुनाएंगे। किताबें कहती हैं जो मौला सज्जाद के गर्दन में तौक था, कतन ये न समझिएगा कि ये सिर्फ एक तौक ही था, मुझे मिंबर की इज्जत की कसम है, किताबें कहती है इस तौक के अंदर लोहे की बर्छियां लगी हुई थी। इस तौक का एक टुकड़ा आज भी हैदराबाद दक्कन में है। उस मोहल्ले को लोग दारुल शफा कहते हैं, हिंदू भी वहां आके शिफा मांगते हैं। यह तौक मौला सजाद की गर्दन में था। इसके दोनों तरफ लंबी लंबी जंजीरें थी। दाईं तरफ की जंजीर भी 4 मौलानों के हाथ में थी, बाईं तरफ की जंजीर भी 4 मौलानों के हाथ में थी। किताबें कहती तौक का वजन इतना ज्यादा था, मौला सज्जाद की कमर तौक के वजन की वजह से झुकी हुई थी। किताबें कहती है कि एक बार बाजार में जाते हुए एक शख्स ने हुसैन के बेटे को पहचान लिया, ये अली का मुहिब था। ये जोश में आया और आके करीब आके कहने लगा है अली का क्या लगता है? सजाद रो कहते लगता नहीं, मैं खुद अली हूं। नाम क्या है तेरा? फरमाया अली इब्न हुसैन, हुसैन का बेटा है। इतना कहना था, ये तड़पा, इसका हाथ आया तलवार के कब्जे पे, ये शाम के बाजार में तलवार खींचने लगा। झुकी कमर से सजाद की आवाज, खबरदार तलवार न खींचना। देख के कहने लगा मोहम्मद का बेटा तुझे कड़ियों में देखूं और मैं इन्हें कत्ल भी ना करूं। सजाद की आवाज, तलवार नियाम में रख, मेरे साथ मेरी मां आ रही है, मेरे साथ मेरी बहनें आ रही हैं। ऐसे ना हो कि तू जंग शुरू करे और बाजार में भगदड़ मच जाए, मेरे साथ सैयदादियां आ रही हैं। इसने कहा फिर हुसैन का बेटा मैं क़यामत वाले दिन बतूल को जवाब क्या दूंगा कि मैं जिंदा था और वक्त के इमाम की नुसरत भी ना कर सका। सजाद रो कहते नुसरत करना चाहता है? हाँ मौला नुसरत करना चाहता हूं। सजाद की आवाज है अपने सर से अमामा उतार। इसने अमामा उतारा, सजाद की आवाज है इसकी पट्टी बना। इसने अमामे की पट्टी बना के सजाद के सामने कहा अब क्या हुक्म है? सैयद की आंखों का लहू तेज हुआ, रो के आवाज आई मेरी पोस्ट के पीछे आ, मेरी गर्दन से तौक आके ये कपड़ा गर्दन के ऊपर रख दे। जितनी देर तक ये कपड़ा रहे थोड़ी देर सजाद का चलना आसा। सरकार बाकर रवायत करते, मौला फरमाते जब मैंने अपने बाबे को गौसल दिया मेरे बाबे की गर्दन में गोश्त मौजूद नहीं था। इतना वजनी तौक उठाया, बस मैं वो नमाज पढ़ूं और आपको सलाम करूं। इधर वाली जंजीरें इधर वाले मौलानों के हाथ में, उधर वाली जंजीर उधर मौलान के हाथ में। नमाजी चेहरे बैठे हैं, हमें परदेश में नमाज पढ़नी पड़ जाए, हम लोगों से पूछते हैं रुखे किबला कहां है। सज्जाद मुसलसल बाजार में सफर करते थे,
सजाद ने एक भी नमाज न छोड़ी। जब नमाज का वक्त होता हुसैन का बेटा रकू में अल्लाह अकबर कहता, कोई उधर से धक्का देता, कोई इधर से धक्का देता। सजाद रुख किबला को ढूंढता, आवाज़ परवरदिगार आती, हुसैन का बेटा तू काबा न ढूंढ, तू जिधर मुंह करेगा मैं अपने काबे को उधर फेर दूंगा। सजाद शाम के बाजार में एक नमाज पढ़ के मैं मिंबर छोड़ने लगा, मौला सजाद बाजार शाम में थे। काफिला रुक गया क्योंकि सजाद की कमर के साथ ऊंटों की रस्सियां थी। जो ही सजाद रुकते थे पीछे ऊंट रुक जाते थे, जब ऊंट रुकते थे तो नेज़े रुक जाते थे, जब नेज़े रुकते थे तो काफिला रुक जाता था। बाजार शाम में कमीनों का काफिला आगे चला गया, सजाद का काफिला पीछे रुक गया। कोई सैयद बैठा हो ये सतर सुन के मुझे माफ कर देना। उमर इब्ने साद ने शेमर से पूछा, काफिला क्यों रुक गया है, कैदी क्यों नहीं चल रहे, नेज़े क्यों ठहर गए हैं? उसे कहा इसलिए रुक गए हैं, हुसैन का बेटा बाजार में नमाज पढ़ रहा है। ये बेगैरत दे के कहने लगा, अगर ये नमाज पढ़ते रहे तो हम ऐलान कैसे करेंगे कि हमने बागी मारा था। जैसे भी हो हुसैन के बेटे की नमाज खत्म करवा। इस मलाउन ने 2 सिपाहियों को भेजा, इन्होंने अपने घोड़ों को एड़ लगाई। ये वहां है जहां सजाद रको की हालत में था। इन्होंने दोनों मलाउनों से सजाद के तौ की जंजीरें खींची। एक मलाउन ने उधर वाले घोड़े में जंजीर पकड़ी, दूसरे मलाओं ने इधर वाले घोड़े पर जंजीर पकड़ी। इन्होंने जो ही घोड़े को एड़ लगाई, बरसियां सजाद की गर्दन के अंदर गई। हुसैन का बेटा जमीन पे गिरा, घोड़ों ने दौड़ना शुरू किया। सजाद बाजार में कह रहा था, सुभान रब्बी अलाला, सुभान रब्बी अलाला, सुभान रब्बी अलाला। आवाज़ें परवरदिगार आई, अनता सय्यदुल साजिदीन, अनता ज़ैनुल आबिदीन। अल्लाह अल्लाह।